Assalamu alaikum. Today we have 6th lecture for Business Finance MGT 232. We were studying about annuities and types of its annuities. Today in our today's lecture we'll be moving on to finding out the loan amortization, the NE1 cash flows, and how we are going to manage a certain amount of investment when we have unequal payments. Secondly, we'll be looking at our effective annual rate and effect of frequency or the impact of frequency on certain amount of present or future value. Now let's have a brief overview of our last lecture. What was it about? If you look at our last lecture, that was annuity. If we simply define annuity, it is a series of equal payment to be made or received at equal interval of time. That means if you have equal interval of time of 5 years and you have to make payment of 1000 rupees each year for the next 5 years, that is your annuity. So whenever you have to make equal payments with equal time period. For example, if we draw it on a timeline and define it, it would be like we have 5 years, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. We have 5 years and we have to make payment of 100 rupees each year for the next 5 years. That means we are paying 100 rupees each year for the next 5 years. हर साल हमने पेमेंट करनी है और इक्वल पेमेंट करनी है और हर एक साल के डिफरेंस पे करनी है. ये नहीं है कि एक साल हमने पेमेंट 100 की है फिर 2 साल छोड़ के तो फिर हमने दूसरी पेमेंट की है. इस तरह नहीं हो सकता. आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए. दैट मीन्स कि चाहे 6 मंथ्स है, मंथ्स पे है, एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जिस भी लेवल के ऊपर है, लेकिन वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है. तो वो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड योर एन्युटी. देन वी हैव 2 different types of annuities. First one is your ordinary annuity and second one is your annuity due. Now when we talk about ordinary annuity, it is the payment to be made or received at the end of the year, at the end of a time period. The specific time period जो भी mention है उसके end में अगर you are making a certain payment, that is called your ordinary annuity. Now if certain payments payments are paid or received before the start of the year or before the start at the beginning of the period or the time interval, तो वो आपके annuity due हो जाएगी. So if let's suppose if you look at this timeline and you are making a payment after year 1, then you are making payment after year 2 यहाँ पे आके, फिर after year 3, this is called your ordinary annuity. Now if you talk about the annuity due, that means you are making the payment at the beginning of the year. That means यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट की है, फिर यहाँ पे अपनी पेमेंट की है स्टार्ट में, साल से पहले आपने पेमेंट कर दी स्टार्ट होने के. ना इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि यू हैव टेकन ए लोन. तो आपकी जब भी लोन किया जाता है, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर कार फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग और सर्टेन टाइप ऑफ लोन्स, तो उसमें आपकी पेमेंट जब भी दी जाती है तो एक तो उसमें इक्वल पेमेंट्स होती है, सेकेंडली उसमें वो स्टार्ट ऑफ द मंथ में पेमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहेंगे आपने पेमेंट करनी है 1000 रुपीज की या 10,000 रुपीज की, यू हैव टू मेक एन इक्वल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 5 years and each month next 5 years each month at the beginning of each month. तो वो तो beginning of each month क्योंकि हमने महीने के जब let's suppose if I am taking if I am going for a car financing और मैंने कुछ पेमेंट्स करनी है, तो my payment would be like, मेरी जो पे आएगी महीने के स्टार्ट में, पे आने के फौरन बाद मेरी पेमेंट से कुछ अमाउंट कट जाएगी, मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट कट जाएगी जो कि मेंशन होगी, जो कि पहले से डिसाइडेड है, वो पेमेंट कर देगी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ. तो वो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ जो कट रही है, दैट इज योर एन्युटी ड्यू. नाउ लेट्स सपोज इफ आई हैव टू मेक इंश्योरेंस पेमेंट, कोई मैंने इंश्योरेंस कराई है और हर साल के बाद मैंने हर 12 मंथ्स के बाद, साल बाद मैंने जो है एक पेमेंट करनी होती है अपने इंश्योरेंस की. तो जो साल बाद मैं एक पेमेंट करूंगी, हर साल के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करूंगी, वो पेमेंट अमाउंट जो कि दैट मस्ट बी इक्वल प्लस आपकी हर साल के बाद हो रही है, तो दैट मीन्स इट्स योर ऑर्डिनरी एन्युटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी स्टडीड वाज फ्यूचर वैल्यू एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी. नाउ स्पेसिफिकली whenever we are talking about time value of money, we are basically looking at present value or the future value. Now हम जब ये कहते हैं कि present value का हमने देखना है, तो present value के अंदर
we have annuity whenever we have to make certain payments. सिंपल प्रेजेंट के बजाय हम annuities देख रहे हैं जहाँ में हमारी equal payments है जो कि हमने जिसकी present value find out करनी है. Now let's suppose present value annuity का मतलब ये होगा कि suppose ये आपने कोई भी certain payments करनी है तो at the end of the month अगर आप payments करोगे at the end of the time period करोगे तो that will be your present value ordinary annuity. And if you are going to make certain payments or you are going to receive those payments at the beginning of the period तो that would be your present value और उसके अगर आपने present value find out करनी है तो that would be your present value of annuity due. Similarly for future value के लिए भी आपका यही है कि if you are going for making payments or receiving the payments at the end of the year or at the end of the time period and you are finding out the present value future value of all those payments for certain number of years, that means you are actually finding out the future value ordinary annuity. Now if you have certain payments to be made or certain payments to be received at the beginning of the month or beginning of the time period and you have to find out the present value for all those payments, that would be your annuity due, future value annuity due. So ये दोनों का difference है. Then we also looked at steps to find out your time value of money problems. There are simple steps. For the first one is to read your स्टेटमेंट थॉरली. बहुत जरूरी है कि आप एक नहीं दो दफा अपनी स्टेटमेंट को थॉरली पढ़ो, उसको रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो कि व्हाट डज इट डिफाइन और व्हाट डज इट इज टेलिंग यू. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका डाटा कलेक्ट करना है. तो आपने एक दफा स्टेटमेंट पढ़ी, अंडरस्टूड, एंड सेकंड टाइम उसको पढ़े और उसमें से अपना डाटा कलेक्ट करें कि जी इतनी मुझे पेमेंट्स दी हुई है, इतना प्रेजेंट वैल्यू है, इतनी फ्यूचर वैल्यू है, इतनी मेरी अमाउंट परसेंटेज इंटरेस्ट है, इतना टाइम पीरियड, ये सब चीजें अपना अलग अलग डाटा बनाएगी. दिस इज योर सेकंड स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द प्रॉब्लम थॉरली. सेकंड स्टेप इज टू मेक अ डाटा. थर्ड स्टेप इज टू मेक अ टाइम लाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्योंकि टाइम लाइन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है दैट वेदर यू हैव टू मेक पेमेंट्स एट द स्टार्ट or at the end or you have to make the payments at the or you whatever the amount of payments or for how many years it has to be made or received. तो वो चीज भी डिफाइन हो जाती है. तो जरूरी है कि आप इस चीजों को भी देखते रहें और टाइमलाइन जरूर बनाएं. इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज डिफाइन होती है, जो थर्ड स्टेप है दैट इज टू मेक अ टाइमलाइन एंड फोर्थ स्टेप इज टू राइट डाउन अ फार्मूला. फिफ्थ स्टेप इज टू पुट इन द वैल्यूज टू फाइंड आउट द आंसर. नाउ डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स विद इट. मैं हमेशा आपको साथ साथ कहती रही हूँ कि अपने आपके यू मस्ट हैव अ पेपर, अ पेन, और अपने कभी भी पेपर्स में या कहीं असाइनमेंट क्विज़ कहीं पे भी आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना. You have to be very careful for this thing. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉब्लम किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, लाइक इफ इट्स रिलेटेड टू एन्युटी और इट इज रिलेटेड टू सिंपल क्वेश्चन. अगर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल इंटरेस्ट रेट है या आपकी एन्युटी है, फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग है या इफेक्टिव एनुअल रेट है, किसी भी किस्म का हो, यू हैव टू follow these steps. So in today's lecture we will be looking at uneven cash flows. And even cash flows are found out only when you have unequal payments or over unequal time interval. For example, if you have to make unequal payments और इनकी सब 100 रुपीज एक साल, 200 दूसरे साल, किसी साल कोई पेमेंट नहीं करनी, and you have there is no certainty or your restriction of fixed amount कि जी एक साल बाद ही हर पेमेंट होनी चाहिए, 2 साल बाद भी दूसरी पेमेंट हो सकती है. तो जब भी आपके unequal time period हो, number of periods unequal हो, unequal your payment, so you then how you are going to find out the present or the future value. Now in that case we are going to we can't use annuity क्योंकि annuity में तो जरूरी है कि unequal payments ना हो, उसमें जरूरी है कि आपकी equal payments और equal time period पे हो. So whenever you have unequal number of periods and unequal payments, you are going to find out the uneven cash flow stream. उस uneven cash flow stream use करते हैं और उसके तरीके से you find out the present and the future value. So that depends कि आपके पास कितने number of unequal payments आ रही, कितने over कितने years के लिए. So the best example of your uneven cash flows is your dividend cash flows. Now let's suppose I have made an investment in a company और वो उस कंपनी की जो आती है डिविडेंड पॉलिसी है उसके मुताबिक जो जब भी आपको डिविडेंड मिला वो इस तरह से मिला कि नाउ लेट्स सपोज आई हैव 5 number of years that is rupees 100 to be received. मैं एज एन इन्वेस्टर काम कर रही हूँ और मुझे कुछ डिविडेंड मिल रहा है. Now that dividend dividend in the D1 for the first year मुझे मिला है, 1 साल के बाद मिला है. तो 1 साल के बाद मिला है, ये तो मुझे पता चल गया इट्स एन ऑर्डिनरी एन्युटी. अच्छा जी, उसके बाद इसमें क्योंकि हमें एन्युटी फाइंड आउट यहाँ पे नहीं कर रहे, हम क्योंकि अनइवन कैश फ्लोज को देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट डिविडेंड मुझे मिलता है 1 साल के बाद. अब दूसरे और तीसरे साल मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड पॉलिसी. यहाँ पे कोई भी इतना अमाउंट ऑफ कैश अर्न ही नहीं किया कंपनी ने कि वो आपको
कुछ डिविडेंड पे कर सके। तो कंपनी जो है 3 साल जो है ना वो कोई पेमेंट नहीं करती, एंड देन इट इज गोइंग टू मेक पेमेंट ऑफ ₹120 एंड देन पेमेंट ऑफ ₹110 इन द 5th ईयर। तो दैट मीन्स कि 100 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर पे मिला, फिर 2 साल कुछ ना मिला, और मतलब एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर्स आपको 4th ईयर पे जाके 120 रुपीज मिले, और 5th ईयर पे जाके यू गेट 110 रुपीज। एक तो इसमें अनइक्वल पेमेंट्स है, सेकेंडली इसमें अनइक्वल टाइम पीरियड है, किसी साल कुछ नहीं मिल रहा और किसी ईयर्स में भी बीच में गैप भी आ रहा है और किसी ईयर में 7। Now let's look at an example of uneven cash flow, how we are going to find out, or how we are going to solve out this uneven cash flow stream. Now let's suppose we have a question. Ali will receive the set of cash flows below. What is the present value at a discount rate of 10%? Now let's suppose यहाँ पे अगर आप if you look at the screen or the slides, you have a timeline for 5 years and you have different amount of payments at each year. हर साल आपके different amount of payments है, और the interest rate to be made or the discount rate is 10%. You have to find out the present value at this discount rate. That means कि आपने इस पूरी cash flow stream की present value find out करनी है. Now how we are going to find out the present value? Now let's suppose R is your payment to be made. This R is your payment, your amount of payment, unequal payment, and you have interest rate of I%, and you have this number of years defined with 0, 1, 2, 3. Now what you are going to do is you are going to find out the present value of payment at year 1. फर्स्ट ईयर पे जो पेमेंट है उसका पहले प्रेजेंट वैल्यू, फिर सेकेंड ईयर की पेमेंट, फिर थर्ड ईयर की पेमेंट। तो जो फर्स्ट ईयर की है दैट वुड बी R इंटू, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + I पावर -n, सो इट वुड बी 1 + I% पावर -1, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट किया, तो ये 1 साल पहले हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए हो जाएगा R इंटू 1 + I%, ये दिस इज R1, दिस इज R2 पावर -2, क्योंकि हम 2 साल पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। सिमिलरली R3 इंटू 1 + I% पावर -3, क्योंकि हम 1, 2, 3 साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सिमिलरली इस तरह करके इनमें जो भी हमारी वैल्यूज आती हैं, इन सब वैल्यूज को हम इकट्ठा ऐड करेंगे। नाउ लेट्स सपोज इट्स A, B, C, D and E. The present value of this cash flow stream would be A + B + C + D + E. So that would be your present value, कि हम हर एक ईयर की अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम आ जाएगी। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू, यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स के आप एक की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन यू मेक एन एडिशन, और आखिर में आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट सर्टेन कैश फ्लो स्ट्रीम आ जाएगी। Now let's suppose we have piece at a time is actually being used as a word being used कि आप जब भी uneven cash flow को करते हैं तो आप piece at a time एक piece एक टाइम में ले होगे और उसको solve करके and में you will have a total accumulated value. Now let's suppose इसको अगर हम इस mixed flow को mixed flow या uneven cash flow को अगर हम solve out करें तो how would it be? It is like present value of uneven cash flow stream. We have 600 rupees to be made at year 1, 600 at year 2, 400 at year 3, 400 at year 4, and 100 at year 5. If you look at the pattern, it is an unequal pattern. Then you have to make unequal payments at different years. तो वो कोई पाबंदी नहीं है कि 600 एक साल बाद, दूसरे साल बाद, तो तीसरे साल बाद you are going to make 400 rupees. तो वो थोड़ा आपकी पेमेंट्स और आपके टाइम पीरियड्स में डिफरेंसेस हैं। द इंटरेस्ट रेट टू बी मेड इज योर 10%, दैट मींस अगर आप इसमें फाइंड आउट करो द वैल्यू ऑफ I इज दिस, ये आपकी n की वैल्यूज हो जाएंगी, नंबर ऑफ इयर्स, एंड ये आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी। अब हम हर ईयर की वैल्यू की अलग से फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हर एक की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको एक्यूमुलेटेड फॉर्म में ऐड करने के बाद देखते हैं कि ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। तो लेट्स सपोज फॉर द ईयर 1 वी हैव ₹600 टू बी मेड, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू वी हैव इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + I पावर -n. Now let's suppose you have 600 rupees जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू, अब कितने टाइम पहले हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 1 साल पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। So that would be present value is equals to
600 इंटू 1.1, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे -1 हो जाएंगे क्योंकि हम एक साल पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट वुड बी इक्वल टू ₹554.45। सिमिलरली फॉर ईयर 2 क्या होगा, ईयर 2 के लिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 600 इंटू 1.1 पावर -2, क्यों, क्योंकि हम एक और दो साल पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। देन वी हैव ईयर 3, जिस पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू वुड बी 400 इंटू 1.1 पावर -3, दैट मीन्स 3 साल पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको -3 करेंगे और सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन वी हैव ईयर 4, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 400 into 1.1 power -4. For year 5, we have present value is equals to 100 into 1.1 पावर -5, क्योंकि हमें उसकी 5 साल पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। Now let's suppose इन सब की हमने कैलकुलेशन की, the value for first year is 554.45, for second year is 495.87, 300.5 is 53, 273.21 and 62.09। ये आपकी ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट हुई है हर एक ईयर की, हर ईयर के अलग-अलग हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की। तो इफ वी सम इट अप, अगर इस सारी वैल्यू को हम सम अप करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आती है दैट इज 1677.15, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिक्स्ड फ्लो और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर की। नाउ लेट्स सपोज अब हम अगर इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। नाउ इफ वी फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उसमें थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है। लेट्स सपोज यही हमारी कैश फ्लो स्ट्रीम है और इसी की हमने अब प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ना इसकी अलग, फिर इसकी, फिर इस ईयर की, फिर इस ईयर की, और फिर एट द एंड इस ईयर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ लेट्स सपोज हम 5th ईयर पे कर रहे हैं, तो हमने, मैं अगर 5th ईयर पे कर रही हूँ तो मैं 5th ईयर पे खड़ी हुई हूँ, दैट मीन्स के मैं ये देख रही हूँ फ्यूचर वैल्यू मैंने देखनी है, तो मैं ये देख रही हूँ कि 5th ईयर के ऊपर हर एक की वैल्यू क्या आएगी। पहले हमने प्रेजेंट फाइंड आउट करना था तो हम 0 पे थे, दैट मीन्स कि हर आगे फ्यूचर वाले ईयर की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑलरेडी जो प्रेजेंट ईयर्स पास्ट ईयर्स हैं उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या, दैट मीन्स 5th ईयर पे, सॉरी उनकी आज फ्यूचर वैल्यू क्या, दैट मीन्स 5th ईयर पे उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या। सपोज इफ आई एम फाइंडिंग आउट द वैल्यू फॉर द 5th ईयर, मैं 5th ईयर पे ही खड़ी हुई हूँ और उसी ईयर की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दैट इसमें एक चीज है कि योर नंबर ऑफ ईयर्स विल बी अल्टरनेटिव बेसिस। फॉर एग्जांपल 5 की जगह 0, दिस वुड बी योर ईयर 1, दिस इज ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 एंड ईयर 5। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू। ना ईयर 0 का मतलब ये कि मैं उस दिन उधर ही खड़ी हुई हूँ, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू। द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू present value is into 1 plus I power n. Now the future value is equals to, अब हम क्योंकि 100 की present future value find out करें and it's on year 0, that would be 100 into 1.1 power 0, that is किसी भी anything that has a power of 0, x is equals to x power 0 is equals to 1, तो हम इस चीज की पावर 0 is equals to 1, 1 into 100 is equals to 100. So now let's suppose for the 4th year, अब 4th year में आप देखें कि एक साल के बाद मुझे 5th year पे फ्यूचर में वैल्यू चाहिए कि एक साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, तो मुझे इसकी फ्यूचर हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एक साल के डिफरेंस पे, इसलिए हम इसका n जो है नंबर ऑफ ईयर जो है दैट विल बी टेकन एज 1. So 100 into that would be 400 into 1.1 power 1, ये इसकी वैल्यू होगी. Then we have to find out the value for the second year, that will be 400 into 1.1 power 2, that means इससे exactly 2 साल पहले. If we find out the value for the third year, that is rupees 600 into 1.1 power 3, that means कि इसकी 3 साल पहले, जो 3 साल के बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो वो मैंने उसकी थर्ड ईयर की वैल्यू फाइंड आउट की. नाउ इफ आई लुक एट, सॉरी दैट वुड बी 1 2 3 एंड वी हैव ईयर 600, इसकी जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो दैट वुड बी ईयर 4. क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 4 साल बाद मैंने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी 4. If you calculate all the values and add up, that would mean you have find out the future value of that uncash flow stream. Let's suppose it's ABCD.
कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इन सब की अलग-अलग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट किया, उन सब फ्यूचर वैल्यू को ऐड अप किया तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ सर्टेन अमाउंट आ गई जिसको हमने ABCD कह दिया. तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम. एंड इससे पहले जो हमने फाइंड आउट किया, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम. Now this is how you find out the present value and the future value of your uneven cash flows. Now if you look at the frequency of the compounding, जब इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है. नाउ इफ वी लुक एट द सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, या जिसके अंदर हमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी, जरूरी नहीं है कि ऑल योर पेमेंट्स हैव टू बी मेड ऑन each year, on the difference of each year or on the difference of each month. तो आपकी कोई भी डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स हो सकती हैं. दैट विल बी सेमी एनुअली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, और यू हैव योर डेली कंपाउंडिंग, you have your monthly compounding, you have your annual compounding. So that all depends on the frequency of your compounding, and most of the time your companies and your banks and your loan payments to be made, ये सब जितनी भी हैं वो सेमी एनुअली भी समटाइम होती है और समटाइम मंथली एंड योर क्वार्टरली भी होती है. That depends. Now let's look at the general formula of your frequency of compounding, and we'll be moving on to finding out the present value and the future value using the frequency of compounding. Looking at the general formula, the simple general formula for your future value is equals to present value into 1 plus I over m whole power m into n. That means आपकी दो चीजों में चेंज. जब भी हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो सिर्फ दो ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर चेंजेस आएंगे. The first thing that is going to be changed is your interest rate. And second thing that is going to be changed is your number of years. क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, दैट मीन्स कि आप साल में 2 दफा इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो. और नंबर ऑफ इयर्स डेफिनेटली देखना जरूरी है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ इयर्स, अगर 5 साल का है और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो दैट मीन्स कि साल में 2 दफा पेमेंट होनी है. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी होगी, 10 पेमेंट्स हो गई. तो 5 साल के लिए पेमेंट्स करनी है और हर साल में 2 पेमेंट्स करनी है, तो 5 into 2 would be 10. तो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह भी जितने भी नंबर ऑफ इयर्स लोगे, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपके एंड में चेंजेस आएंगे. तो what will be the change actually? The I would become I over m, and your n will become your n into m, where if you look at I is your interest rate, n is your number of years, and m is your compounding periods per year. कि हर साल में per year आए, that means कि हर साल में कितने आपकी कितनी ज्यादा कंपाउंडिंग है, कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स या नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं. साल में अगर डेली है तो इसके मतलब साल में 12 पेमेंट्स हैं. तो अगर क्वार्टरली है तो साल में 4 पेमेंट्स हैं. तो आपके इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, दैट विल बी आई डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ पेमेंट्स, एंड आपके एन में चेंज आता है, एन इंटू एम हो जाता है. Now if you look at the annual interest rate, future value of an m, future value at the end of year n, किसी year के end पे, and future present value of the cash flow today PV not means. Now let's look at the frequency of compounding, कि जब number of years या number of periods change होते रहेंगे तो किस तरह से आपके interest rate और आपके number of years में change आता है. Now suppose ये हम करते हैं कि हमारा the interest rate जो है that is your I is equals to your is 10%, and n is equals to 2 years. Now let's suppose this कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है और नंबर ऑफ इयर्स जो है वो 2 years है. Now let's your annually compounding, अब हमारे पास 5 डिफरेंट किस्म की कंपाउंडिंग होती है. द फर्स्ट वन इज योर एनुअल कंपाउंडिंग, दैट इज साल में एक दफा, हर साल के बाद आपकी पेमेंट्स होंगी या रिसीव पेड करोगे या रिसीव करोगे. देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेमी एनुअली, दैट मीन्स हर 6 महीने बाद, तो 6 months के बाद हमने पेमेंट करनी है, और वो आपकी टू पेमेंट्स. क्वार्टरली का मीन्स क्या है कि हर 3 months के बाद आपने पेमेंट्स करनी है, और दैट विल बी योर 4 पेमेंट्स. मंथली का मतलब ये है कि हर मंथ के बाद 1 month के बाद हमने पेमेंट करनी है, और कितनी, 12 पेमेंट्स इन अ ईयर. डेली का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक पेमेंट और यू हैव टू रिसीव द पेमेंट एवरी डे. दैट मीन्स के that would be every day, and 365 payments a year. So ये जो आपकी 4 payments है, 4 payments a year, that will be 2 payments a year. If you have annually, तो that means के within a year हो जाता है, तो 1 payment each year. Now for annually it's 1 payment, for semi-annually that would be 2 payments, for quarterly it's 4 payments, for monthly it's 12 payments, and for daily it's
365 पेमेंट्स, क्योंकि हम डेली को कंसिडर ओवरऑल हर पूरे साल के अंदर कंसिडर करते हैं, 365 होती है। क्योंकि हमारे पास रेट हमेशा एनुअल रेट होता है, इसलिए हम उसको ये देखते हैं कि एक साल के अंदर एनुअली कितनी पेमेंट्स होंगी। तो एनुअली अगर सेमी एनुअली है तो दैट मीन्स के साल में 2 पेमेंट्स होंगी हमारी एनुअल, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल होता है। नाउ लेट्स सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड योर नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 years, तो आपके किस तरह से इसमें चेंजेस आएगा। नाउ इफ द इंटरेस्ट रेट दैट विल बी I/M, दैट मीन्स 12%, और M क्या आ जाएगा इधर 1, क्योंकि एक पेमेंट है। M इज योर नंबर ऑफ पेमेंट्स। इसके नंबर ऑफ पीरियड्स में क्या चेंज आएगा, इसके ईयर्स हमने कितने कंसीडर किए, यहाँ पे आप देखें तो योर n इज इक्वल्स टू 2 years एंड योर m वुड बी 1, तो दैट विल बी 2। लुकिंग एट if you have semi-annual compounding, that will be 12% divided by 2, that will be your 6%. If you have number of periods, that is number of years is 2 and you have 2 payments to be made, that is 4 years. If you have quarterly compounding, so that means you have to make 4 different payments. तो इसका मतलब है साल में हर 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, और कितनी पेमेंट करेंगे, 4, टोटल 4 पेमेंट्स हो जाएंगी। तो 12% डिवाइडेड बाय 4, इट वुड बी 3%. That means के your number of years is 2 and your number of payments to be made is 4, that is 8. For monthly you have 12% divided by 12%, that is equals to 1%, and you have 2 number of years into 12 payments to be made, that will be 24. Every day, अगर every day तो that will be your 12% divided by 365, that will equal 0.032%, and if we have to multiply 2 into 365, that will be 730 total आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे। सो ये डिफाइन ये करता है कि अगर जिस तरह से आपके एनुअल कंपाउंडिंग चेंज होती जाती है, आपकी जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ईयर्स चेंज होते रहते हैं, आपके नंबर ऑफ पीरियड्स चेंज होते रहते हैं, उसी तरह आपके चेंजेस आते रहते हैं आप लोगों की नंबर ऑफ ईयर्स और आपके इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस किस्म की, कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इज बीइंग डन। Now let's suppose we have a question for finding out the impact of frequency on simple interest rate की जगह अगर let's suppose हमने present value या future value find out करनी हो and we have compounding, तो फिर हम उसको किस तरीके से find out करते हैं या value किस तरीके से देखते हैं। Now let's suppose Ali has ₹1,000 to invest for 2 years at an annual interest rate of 12%. That means ये simple आपका जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में किया है कि हमारी पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा होगा हमने सिंपल फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट किया ना। इसमें अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो अली has 1,000 rupees to invest, तो ये इसके पास एक अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट करनी है जो उसके पास अभी है, that means it's your present value. To invest for 2 years, this is your N at an annual interest rate of 12%, that means this is your I. So we have I, N and present value, and we have to find out the future value. Okay, what Ali will have after 2 years. So that means कि अली के पास 2 साल के बाद क्या होगा, that means we are going to find out the future value. So future value is equals to present value into 1 plus I power n. This is the formula for your future value. Now let's put in the values. तो हमारे पास हमने different compounding इसके ऊपर करनी है। पहले किसकी compounding है हमारे पास annual, and then we are going to look at the semi-annual compounding. So अगर हम annual की बात करें तो हमने क्या कहा था, 2 चीजों में change आता है। The first thing is your I and second thing is your n. So I is equals to कितना आपका I, that is 12%, divided by your number of years कितने हैं, 1, क्योंकि हम एनुअल नंबर ऑफ पीरियड्स m देखेंगे तो I इज इक्वल्स टू I ओवर m हो जाएगा, तो दैट इज 12% ओवर m. अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें तो जो अभी मैंने आपको पिछला टेबल करवाया तो इसमें भी वी हैव टेकन द इंटरेस्ट रेट, सॉरी इट्स बीन 12%, इट्स नॉट 10%, इट्स 12% और 2 years, हमने 12% और 2 years को देखे तो उसके हिसाब से हम देखें तो I ओवर m इज इक्वल्स टू 12% डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमारी साल में एक पेमेंट है, दैट इज इक्वल टू 12%. Now if we look at n में क्या चेंज आएगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ईयर्स 2 है तो n इज इक्वल्स टू n इंटू m हो जाना है, तो n हमारा 2 है, m क्योंकि एक साल में एक पेमेंट है एनुअल के लिए तो दैट विल बी इक्वल टू 2. सो यू विल हैव 1 प्लस 0.12 पावर
2, the answer would be 1254.40 rupees. So अगर annual compounding करें तो हमारी future value of that 1000 rupees would become 1254.40 after 2 years. Now if we look at semi-annual compounding, अब semi-annual में भी यही होगा कि when you know there is a compounding तो आपकी दो चीज़ों में change आता है, your I and your N. तो I किस तरह से change हो जाएगा, I is equals to I over M. अब semi-annual में कितनी payments होती है, दो payments होती हैं, तो that will be your 12% divided by 2 is equals to 6%. Your N is equals to N into M, that means it's 2 into 2, that will be 4 years. So your value would be 1000 into 1.06. क्यों? क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज 1 point, हमारी जो इंटरेस्ट रेट है that has changed from 12% to 6% in case of semi-annual compounding, and your power would be rupees, it would be 4, and your answer would be rupees 1262.48 rupees. So if you have semi-annual compounding, you have two payments to be made. तो उसको अगर हम 12% divided by 2 करें, that is 6%, and your N into M would be 2 into 2, 4. Now let's look at impact of frequency on quarterly, monthly and daily payments. तो अगर हम quarterly की बात करते हैं तो इसका मतलब है साल में 4 payments करनी है, तो हमारे दो चीज़ों में change आएगा, that is your interest rate and your number of years. So your interest rate would become I is equals to I over M, that is equal to I is your 12% divided by M कितना है, क्योंकि quarterly है तो 4 हो जाएगा, so that will become 3%. Now in case of N, that is N into M, that is equal to 2 into 4 is equals to 8, क्योंकि आपके M जो है यहाँ पे in case of quarterly M is equals to 4, in case of monthly M is equals to 12, in case of daily M is equals to 365. So if we put in the values, so we know the present value is 1000, इसके हमने future value find out करना है. The interest rate is 8%, so 1 plus 0.08 power N is your that is 3%, 0.03, 1 plus 0.03, and इसकी power कितनी आई है, that is 8, N is equals to 8, तो N में change आया, that has become N into M. So the answer would be 1266.77 rupees. That is the answer for your quarterly compounding for rupees 1000 for next 2 years at an interest rate of 12%, compounded quarterly. Now let's suppose you have to find out the value for monthly payments. अगर आपकी monthly compounding है तो then again the change would be in I and the change would be in N. If you find out I is equals to I over M, that is 12%, क्योंकि हमारा monthly है तो हमारी कितने ज़्यादा M की value क्या हो जाएगी, 12, so that will be equal to 1%. So if we look at the value of N, that will be N into M. So N into M क्या है, number of years हमें पता है 2 है, into M की value कितनी है आपकी 12, that will become 24. So if you put in the values, we will have 1000 into 1.01 power 24. So the answer would be 1269.70 rupees. So if you have a quarterly compounding and you have to find out the future value of 1000 rupees at an annual interest rate of 12% for next 2 years, and monthly compounding, and with the monthly compounding you will have an answer of 1269.70 rupees. Now let's find out the value for daily compounding. Now daily compounding में भी same आपका change आएगा, I is equals to I over M. That would mean your 12% divided by 365, that will be equal to 0.032, and your N is equals to N into M. N is equals to N into M, that would become your 2 into 365, that will be equal to 730. So if we put in the values, we will have 1000 into 1.032, it's 0032. 0.0032 power 730. अब खुद देखें कि कितनी इसकी वैल्यू में आएगा, तो वैल्यू would be 1271.0 rupees.
So this is how you find out the future value using different compounding. If you have different frequency of compounding and you have compounding of monthly, quarterly, semi-annually, किसी भी किस्म की compounding, and you have to find out the simple future value interest rate, then you find out value through this formula. Now if we look at the present value of these certain values and the annuity क्योंकि annuity में सबसे ज़्यादा आपकी जो payments होती हैं, क्योंकि वो पेमेंट्स होती हैं या वो कुछ अमाउंट होती है जिसको हमने चेंज करना होता है, तो जब भी हम पेमेंट्स की बात करते हैं और स्पेशली इक्वल पेमेंट्स हो तो हम एन्यूटी की बात करते हैं. तो जब भी एन्यूटी होगा तो उसके ऊपर अगर आप कंपाउंडिंग लगाएंगे तो वो किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट होगी. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंपाउंडिंग फॉर एन्यूटी, लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन. Now let's suppose Ali has to make equal payments of rupees 1000 for 3 years at an annual interest rate of 12% in order to have some amount in future. Now Ali has to make equal payment of rupees 1000. 1000 की उसको payment करनी है, so that means this rupees 1000 has become your payment PMT for 3 years at an annual interest rate of 12%. तो आपके n कितना हो गया 3 years. Annual interest rate जो है that is 12% आए हो गए in order to have some amount in future. तो future में कोई amount बनेगी. That means we are going to find out the future value annuity. So if we look at different compounding annually, semi-annually, quarterly और इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरह से होती है. अभी के लिए मैं सिर्फ एनुअली एंड सेमी एनुअली करती हूँ और फिर इन योर केस आप खुद फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए योर क्वार्टरली एंड सेमी योर मंथली एंड डेली पेमेंट्स. You must have a paper and a pen and a calculator to find out these values. मेरे साथ साथ values find out करें so that it will be easy for you to find out and to understand this annuity and frequency. Don't confuse your values. Now let's suppose हमारे पास क्योंकि हम future value annuity कर रहे हैं, इसका formula क्या है? Future value annuity is equals to payment into 1 plus I power n minus 1 whole over I. This is the formula for your future value annuity. The value of payment is 1000 and you have a change क्योंकि हम frequency की बात कर रहे हैं, so there will be a change and the change would be in I, that is 12% divided by m. 1 हो जाएगा क्योंकि आपकी एक ही payment है, so that will be 12%. You have n is equals to n into m. तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा that's 3 years into 1 is equals to 3. So that will be 1.12 power 3 minus 1 whole over 0.12 and you will have an answer of rupees 3,374.1 rupees. This is your future value annuity for annual compounding. Now if we look at the semi-annual compounding, we will have the same formula, but there will be a change in two things, your interest rate and your number of years. If you look at interest rate, I is equals to I over m, that is 12% divided by 2, that will be equal to 6%. And if you look at n into m, that is n is equals to, so it would be 3 into m is your number of payments. For semi-annually it is 2, so that will become 6. So if we put in the values, we will have 1000 into 1.06 power 6 minus 1 whole over 0.06. The answer would be 697.975.3 rupees. So this will be your answer for semi-annual compounding. Now quarterly, मंथली और डेली के लिए अभी आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यूज एंड किस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम इज द केस फॉर द प्रेजेंट वैल्यू. अगर हमें यही तरीका अगर हमने फाइंड आउट करनी है, इसी के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? सो फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड द रिमेनिंग क्वार्टरली, मंथली एंड डेली पेमेंट्स फॉर दिस फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी क्वेश्चन. So you'll have to find out the values for present and future value on your own, for present and future value on your own for this certain amount of, जिसमें आपने quarterly, monthly and daily की value find out करनी है. Now let's look at the values. यहाँ आपके formula में देखते हैं कि इस तरह से change आएगा when we have to find out the present value and the impact of that frequency or the compounding on your present value. तो आपका वही same process follow होगा जिस तरह कि हमने future value के लिए किया. सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूँ कि formula में change कैसे आएगा. The formula for simple interest rate present value is equals to future value into 1 plus I power minus n. अब इसमें हमारे पास दो चीजों में चेंज आता है, योर I and your n. तो हम इसमें क्या करेंगे कि future value is equals to 1 plus I की जगह हम I over m वाली वैल्यू लिखेंगे और n की जगह हम minus n into m वाली वैल्यू लिखेंगे. Now if this is simple interest rate, if we have to find out the value for our annuity
present value annuity. So how we are going to find out? Present value annuity is equals to payment into 1 minus 1 plus I power minus n whole over I. So इसमें जब हम क्या करेंगे कि हमारी वैल्यू में चेंज किस तरह आएगा कि हमारी सेम वही अमाउंट्स रहेंगी, सिर्फ दो चीजों में चेंज आएंगे, दैट इज योर इंटरेस्ट रेट. तो हम आई की जगह वो वैल्यू यूज करेंगे जो आई ओवर एम की है, और एन की जगह हम एन इंटू एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सेम आई ओवर एम की वैल्यूज आ जाएंगे. अगर ये तो ऑर्डिनरी एन्यूटी, अगर एन्यूटी ड्यू हो तो सेम आपके आई में वही चेंज आएगा. किसके अंदर? आप इसके आगे ब्रैकेट लगा के 1 प्लस आई करते हो इन केस ऑफ एन्यूटी ड्यू, तो 1 प्लस आई की जगह आई ओवर एम हो जाएगा. दैट इज फॉर योर प्रेजेंट वैल्यू. नाउ दिस इज इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन योर प्रेजेंट वैल्यू. नाउ लेट्स look at an effective annual interest rate. That is a bit of a different thing, but being used specifically for the purpose of your frequency of compounding, and when you have to calculate two different interest rate. Now अगर हमारे पास कोई ऐसे इंटरेस्ट रेट हो, एक तो दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट विद डिफरेंट कंपाउंडिंग हो, तब हम यूज करते हैं. सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका इफेक्टिव एनुअल रेट तब फाइंड आउट होता है, तब यूज होता है जब आप लोग ये देख रहे होते हैं कि यू हैव द सेम इंटरेस्ट रेट बट यू हैव डिफरेंट कंपाउंडिंग. मैंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने एक जगह पे डिपॉजिट करना है, और वहां पे मुझे एक जगह पता चलता है कि 12% क्वार्टरली मुझे पेमेंट्स मिलेंगी, दूसरी जगह मुझे 12% सेमी एनुअली मिलेंगी. अब दोनों में से 12% ही इंटरेस्ट रेट एनुअल है, लेकिन सेमी एनुअल और कंपाउंडिंग एक में साल में 4 दफा और दूसरे में साल में 2 दफा मिलनी है. अब इन दोनों में से बेटर सोल्यूशन क्या होगा? आई कैन फाइंड आउट एंड आई कैन से इट ऑन माई ओन, या किसी इंस्टीट्यूशन पे मैं नहीं कह सकती. व्हाट आई हैव टू डू इज टू आई हैव टू फाइंड आउट calculate the value, and the value we calculate to compare different interest plans. Different interest plan को जब compare करने के लिए value find out करते हैं, that is through your effective annual rate. So your actual rate of interest earned or paid after adjusting the nominal rate of 4 factors such as the number of compounding periods per year. तो number of compoundings के लिए factors को adjust करने के बाद जब आप अपना एक interest rate find out करते हो, actual interest rate, वो actual में आपका effective annual interest rate होता है. Now if we look at the formula for effective annual rate, that is EAR, that is your effective annual interest rate. EAR is equals to 1 plus I over M whole power M minus 1. This is the formula for your effective annual rate, where your M is equal to number of periods, your I is equals to your interest rate. EAR is your effective annual rate. Now let's look at the question for your effective annual rate. जो इस एग्जाम्पल को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अभी तक देख रहे हैं. That is BW Basket Wonders. So Basket Wonders effective annual interest rate. Let's look at this. Basket Wonder has a rupees 1000 CD. The CD is your certificates of deposit. So your rupees 1000 certificate of deposit at the bank. The interest rate is 6% compounded quarterly for 1 year. What is its effective annual interest rate? Now simple, अगर हमने किसी का effective annual interest rate find out करना है और 6% quarterly compounding है. So if you look at the question, तो Basket Wonder has rupees 1000. That means ये एक हमारे पास amount आ गई है. The interest rate is 6% compounded quarterly compound है और 1 year के लिए. तो हम अगर अपनी values put करें effective annual rate का formula में, that is 1 plus I over M power M minus 1. So your I is equals to 6%. 6% divided by 4, क्योंकि आपके M की वैल्यू नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है? कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो योर 1 प्लस 6% डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 4, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो M जो है वो 4 है, माइनस 1, एंड इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू यू विल गेट इज 6.14% फॉर योर इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर स्पेसिफिकली फॉर योर बास्केट वंडर्स. कि अगर वो कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे इसे 6% इंटरेस्ट रेट को रखे तो द वैल्यू it is going to earn is 6.14%. Now let's look at a question for effective annual interest rate. क्योंकि हम ये कहते हैं कि effective annual interest rate हम use ही तब करते हैं when we have different interest plans. So मैंने एक जगह अगर मेरे पास compounding quarterly compounding, एक जगह semi annual, एक जगह annual, और I have to make certain decision कि इनमें से बेहतर कौन सा होगा, तो मैं ऐसे ही देखकर नहीं बता सकती. और मैं इंस्टीट्यूशन गया इस बेहतर से कि मुझे ज्यादा पेमेंट, एक साल में ज्यादा पेमेंट मिल जाए, इस तरह से नहीं डिसाइड किया जा सकता. ओवरऑल पेमेंट रिमेन्स द सेम और समटाइम इट बिकम्स कंपाउंडेड, क्योंकि वो ज्यादा हो जाती है व्हेन यू लुक एट सेमी एनुअल और क्वार्टरली कंपाउंडिंग. इससे आगे जाते जाए तो जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होती है वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है ना. हमें एक सर्टेन क्राइटेरिया चाहिए होता है इन ऑर्डर
order to find out कि which one would be the better one, कि इन दो में से थोड़ा बेहतर कौन सा होगा. तो अगर मैं ये देखूं कि मैंने इन दोनों एनुअल दो मेरे पास 2-3 प्लान्स, इन दोनों इन 3 इंटरेस्ट प्लान्स में से which one will be the better, तो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए इफेक्टिव एनुअल रेट. द हायर द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट द बेटर इट इज. इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने वी हैव टू मेक सर्टेन हायर इंटरेस्ट रेट. इसका मतलब ये होता है कि वो वाला इंटरेस्ट प्लान हमारे लिए बेहतर है. और इफ यू फाइंड आउट द आंसर, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बेहतर है. Let's look at a question. Suppose you borrow either through credit card, which charges rupees 12% per month for a year, or through bank loan, which with 12% interest rate that is compounded quarterly. What should be you choose? तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो ये कि आपने यू वांट टू बोरो सम मनी. बोरो आपके पास एक ऑप्शन ये कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लें, जो कि 12% कंपाउंडेड पर मंथ आपको चार्ज करता है. 12% पर मंथ फॉर अ ईयर. दैट मीन्स कि हम मंथली कंपाउंडिंग है. और थ्रू अ बैंक लोन, या फिर आप लोन लो विद 12% इंटरेस्ट रेट दैट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, या फिर आप बैंक लोन लो विद 12% इंटरेस्ट रेट, या उसका 12% इंटरेस्ट रेट हो दैट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो वो आपके लोन ले लो जो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है. अब इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करते हैं. लेट्स लुक एट द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव एनुअल रेट. EAR is equals to 1 plus I over M whole power M minus 1. This is your effective annual rate फॉर्मूला. अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन ए रखते हैं. यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है. द ऑप्शन ए इज टू आइदर टू गेट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड. तो हम क्या करते हैं, EAR फॉर क्रेडिट कार्ड फाइंड आउट करते हैं. क्रेडिट कार्ड के लिए हमने फाइंड आउट किया, तो हमारा इंटरेस्ट रेट इज 12% पर मंथ. दैट मीन्स कि 1 प्लस 0.12 12% डिवाइडेड बाय कितना है, या आप सिंपल 12% कर लें इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग राइटिंग इट डाउन एज 0.12. 12% डिवाइड पर मंथ है, तो दैट मीन्स कि पर मंथ के लिए क्या होगा, आपके एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी. सो योर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन के लिए योर एम इज इक्वल्स टू 12 minus 1. So that would be 1 plus 1% power, so its power would be 12 minus 1. Your answer will be 12.68%. So this is the answer for your credit card, effective annual rate credit card. Now if you find out the effective annual rate for your bank loan, so बैंक लोन के लिए अगर हम फाइंड आउट करें, तो बैंक लोन में हमारे पास क्या है, विद 12% इंटरेस्ट रेट दैट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी 12% इंटरेस्ट रेट की है. सो हमारी यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाय 4. m की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 होल पावर 4 माइनस 1. So that will be 1 plus 0.03, that is 3%. Power 4 minus 1. The answer would be 12.55%. हम क्या चूज करेंगे, एक का आंसर आया है 12.55%, एक का आंसर 12.68%. नाउ इफ आई से आई हैव टू मेक द पेमेंट, तो 12.68 तो मैं नहीं मेकूंगी, मैं कम से कम वैल्यू पे करूं 12.55. अगर मैंने रिसीव करना है तो मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा. एक्चुअल में आपका इफेक्टिव एनुअल रेट आपको कभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कि दोनों में से ज्यादा या कम क्या, या कितनी पेमेंट करनी है, हमें ये नहीं बताता. ये सिर्फ हमें कंपेयर करके आंसर बताता है कि कौन सा बेहतर है. दैट मीन्स कि जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो जरा बेहतर प्लान है. ये नहीं कि वो हमें पेमेंट ज्यादा करनी है, हम रिसीव ज्यादा करें. नो, it doesn't tell you about the payment to be made or the payment to receive. It just tell you which one is the better. So 12.68%, 12.55%, the higher the value of EAR, the higher the EAR, the better it is, the better the interest plan. So that means 12.68% is greater. You'll go for plan A. Plan A will be selected because the value of plan A is greater than your plan B. Now the next topic we have is loan amortization. That is almost at the end of your chapters.
If you look at loan amortization, it is basically an example of a best example of your annuity, where you have to make equal periodic payment at equal interval of time. तो आपके annuity की best example है, plus इसमें compounding भी consider की जाती है कि अगर आपकी जिस तरह की भी compounding होगी और आपने अगर कहीं से loan लिया है with equal payments और equal at equal interval of time और आपकी compounding भी कुछ ना कुछ semi annually quarterly कोई भी compounding हो रही है, तो वो कहाँ पे best utilization आपकी real life में कहाँ हो रही होती है. In case of this लोन एमोर्टाइजेशन, इट इज योर एन्यूटी. आपकी एन्यूटी और ये सब चीजें जो है वो लोन एमोर्टाइजेशन के केस में स्पेसिफिकली फ्रॉम द बैंक्स एक स्पेसिफिक आपका शेड्यूल बनाया जाता है जो कि लोन एमोर्टाइजेशन के लिए होता है, और ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है. Now, if loan is to be repaid in equal periodic payments, it is said to be amortized loan. तो किसी भी equal periodic payments में, that means कि equal payments with equal period of time, तो it is called as your amortized loan. Now, it is an application of compounding interest and annuity, जो कि मैं अभी आपको बताया है. For example, if you are going for a car loan, mortgage loan या student loan या house financing, कोई भी इस किस्म का लोन लेते हैं जिसके अंदर equal payments at equal periodic time में होती है, तो that is best example of your loan amortization. Let's look at the steps of loan amortization, and we'll be moving on doing this. We'll repeat these steps of loan amortization, and we'll be actually finding out the loan amortization schedule, loan amortization plus its schedule and its detail in our next lecture. So next lecture में करेंगे. Let's look at our steps to amortization, amortizing a loan. The first step is to calculate the payment per period. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप पेमेंट पर पीरियड फाइंड आउट करो कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, कि हर पेमेंट या फ्यूचर वैल्यू क्या है, जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बीइंग यूज्ड प्रेजेंट वैल्यू. तो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके उसमें आपके पास सारी अमाउंट्स होती है. यू डोंट नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेमेंट टू बी मेड, क्योंकि आपको पता है इतना लोन लेना है इतने ईयर्स के लिए इतने इंटरेस्ट रेट पे, पर क्या पेमेंट कितनी होगी वो जब तक ये ना पता चले कि आपका कितना कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप पेमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते. सपोज इफ आई नो दैट देयर इज एन 12% इंटरेस्ट रेट हियर ऑन एनुअल बेसिस और फॉर नेक्स्ट 5 years लोन ले रहे हैं, तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि पेमेंट पर पीरियड. तो हमने प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट इन करेंगे और हम पेमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट इन पीरियड टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पहला फर्स्ट जो भी ईयर आता है, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी, उसके अंदर आप क्या करते हो, उसकी बिगनिंग अमाउंट से योर इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हो, तो यू फाइंड आउट एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट टू बी मेड. कि आप अपना जो ओवरऑल पेमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं. योर पेमेंट इज equal to your interest rate plus your principal amount. तो आपने ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो लिए उसके बिगनिंग अमाउंट जो होती है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, इन दोनों को मिलाने के बाद आपकी एक पेमेंट की अमाउंट बनती है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज टू यू हैव टू डिटरमिन योर इंटरेस्ट इन पीरियड. हर पीरियड में हाउ मच इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू मेक, कितना रुपी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू मेक. तो उसके लिए बिगनिंग अमाउंट इनटू इंटरेस्ट करेंगे तो यू विल हैव टू वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट. नाउ कंप्यूट द प्रिंसिपल पेमेंट इन पीरियड टी, दैट इज पेमेंट माइनस इंटरेस्ट. देखिए मैंने क्या कहा है कि पेमेंट जो है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका इंटरेस्ट का, एक आपके प्रिंसिपल का. तो अगर आप पेमेंट में से आप इंटरेस्ट को माइनस कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट. दैट मींस पेमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर प्रिंसिपल. तो ओरिजिनल पेमेंट अमाउंट में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, यू विल हैव योर प्रिंसिपल अमाउंट. देन डिटरमिन द एंडिंग बैलेंस इन पीरियड टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपने उसकी बिगनिंग अमाउंट देखी, उसका इंटरेस्ट पेमेंट देखी, उसकी पहले आपको पेमेंट मिल गई, फिर उसके इंटरेस्ट देखा, फिर उसको प्रिंसिपल पेमेंट देखी कितना है, फिर हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल बिगनिंग अमाउंट में से कितना पेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट पे होगी और रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट या एंडिंग बैलेंस कितना है. उसके बाद वो फाइंड आउट करते हैं जो ओरिजिनल बिगनिंग अमाउंट होती है उसमें से आप प्रिंसिपल पेमेंट को माइनस करके देन यू फाइंड आउट के आपका रिमेनिंग अमाउंट या एंडिंग बैलेंस कितना है. देन यू स्टार्ट अगेन एट स्टेप 2 एंड रिपीट. उसके बाद स्टेप ईयर 2, ईयर 3, 4, 5 के लिए यही स्टेप्स आपके आगे होते हैं. और एट द एंड ऑफ द ईयर जब 5 साल का लोन है, 5 साल गुजर गए, उसका एंडिंग बैलेंस हमेशा 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यू हैव मेड ऑल द पेमेंट्स. आपने पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रिंसिपल पे कर दी, सारी पेमेंट करने के बाद 5 साल के बाद आपके पास एंड में 0 आना चाहिए. दैट मींस यू हैव मेड योर लोन पेमेंट्स सक्सेसफुली. Now this is how we make loan amortization. इस नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करेंगे और देखेंगे कि how we find out the values. That was all about your today's lecture. Let's look at a brief overview or the summary of your today's lecture. First of all, we studied about uneven cash flow streams, where we found out that whenever we have unequal payments at unequal period of times or unequal intervals, how we are going to find out the value of present value and future value. So present value, future value या उसके annuities, अब annuity तो हो नहीं सकती उसमें find out क्योंकि we don't have equal payments over equal interval of time. So what we are going to do is we are going to find out the
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो, हर वो जो अनइवन कैश फ्लो उसके हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन वी विल हैव सम ऑफ दैट प्रेजेंट वैल्यू, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो होगी. सेम इज द केस फॉर योर फ्यूचर वैल्यू, हर एक की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करके उनके क्यूमुलेटिव ऐड करेंगे और देन वी फाइंड आउट द वैल्यू कि वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी. इफ यू लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग दैट डिफाइंस कि आपकी कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स एक साल के अंदर हो रही है. अगर साल के अंदर सेमी एनुअली पेमेंट है, क्वार्टरली है, मंथली है, किस तरह से पेमेंट है, वो अलॉन्ग विद दैट चीज डिफाइन होती है विद योर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. देन वी फाउंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें हमने ये चीज नोट की कि हमारी सिर्फ दो चीजें हैं जिनके अंदर चेंज आता है व्हेनेवर देयर इज कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो, जैसे भी. व्हेनेवर वी से एनुअल कंपाउंडिंग दैट मींस साल में एक पेमेंट है. इफ वी से सेमी एनुअली दैट मींस साल में दो पेमेंट्स है. m इज इक्वल्स टू 2. इफ इट इज क्वार्टरली साल में 4 पेमेंट्स है. इफ इट इज मंथली साल में 12 पेमेंट्स है. एंड इफ इट इज डेली दैट मींस 365 पेमेंट्स एक साल के अंदर है. अगर हम इसका फिर हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फाइंड आउट हो सकता है. सिर्फ दो चीजों में चेंज आएगा. द फर्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट रेट, दैट इज आई विल बिकम योर I will become I over M, where M is your number of periods, and your N will become your N into M, where M is your number of periods and N is your number of years. तो जितने भी number of years हैं उनको number of periods से multiply करेंगे और आपके जो interest rate जो भी है उसको multiply divide by your number of periods करेंगे. तो you'll find out your compounding value of future and present. Then we looked at effective annual rate, that whenever we have two or three different plans with different frequency of compounding and say similar interest rate or sometimes different interest rate and different compounding, then how we are going to choose which one is the better. और उन दोनों में से सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया इज योर इफेक्टिव एनुअल रेट. यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट एंड द हायर द वैल्यू ऑफ ER द बेटर द प्लान इज. दिस इज हाउ यू गो. Then if we discuss about loan amortization, that the best example of your compounding and your annuity is your loan amortization. किसी भी किस्म का जब भी लोन लिया जाता है उसे एक certain amortization schedule बनाया जाता है, and whenever you have a loan of equal payments at an equal interval of time, it is basically called your amortized loan. तो आपका loan amortization को उसके बाद हमने उसका schedule बनाया जिसके अंदर we have to find out certain values, certain amounts. We have to find out the payment, we have to find out the interest, we have to find out the principal amount out of that payment, and then we have to find out the ending balance, that is the remaining amount to be paid. तो वो आपकी सब चीजें आपकी एक step wise चलती हैं. In the next class we'll be moving on to find out the loan amortization. That was all about your today's lecture. If you can practice questions regarding your compounding and your frequency. तो अब मैं जैसे मैंने इसके अंदर कहा था क्वेश्चन इसके अंदर ये है, you'll have to find out the present value and present value annuity with all the compounding and your future value of future value annuity with all the compoundings. So to practice that thing.